رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے محنت کشوں کا رمضان، اور آج ہم آپ کو مختلف قسم کے عاشقان رسول دکھائیں گے کہ جو رمضان کے مبارک مہینے میں بھی روزہ رکھ کر محنت کرتے ہیں، اہل خانہ کے کفالت کے لیے رزق حلال کی تلاش میں گھروں سے نکلتے ہیں۔ حالت روزہ ایک الگ نیکی ہے، رزق حلال کی تلاش ایک الگ نیکی ہے، اور ان تمام معاملات کو یہ طے کرنے کے بعد رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نمازوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد گھر پہنچ کر شام میں افطار کے وقت دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں۔ اور کیا ہی حیرت انگیز بات ہوتی ہوگی کہ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاؤں کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے اللہم اغفر لی، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، تو مغفرت یافتہ میں ان کے نام بھی شامل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے محنت کشوں اور روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ محنت کرنے والوں کے صدقے، ان کی عبادتوں کے صدقے ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں عاشقان رسول کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ ان کے تاثرات کیا ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے، مسرت سے سینہ مدینہ بنا ہے، مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام خالد محمود ہے۔ ماشاءاللہ، کتنے عرصے سے یہاں پر یہ کام کر رہے ہیں آپ؟ ہم تقریباً 15-16 سال سے کام کیا کام ہوتا ہے آپ کے یہاں پر ویسے؟ یہ اسٹینلیس اسٹیل کی فیبریکیشن کا کام ہوتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، ویلڈنگ وغیرہ بھی ہوتی ہوگی؟ یہ ویلڈنگ بھی ہوتی ہے، بینڈنگ وغیرہ، کٹنگ وغیرہ ہوتی اچھا، دن بھر میں کتنا کام کر لیتے ہوں گے آپ؟ ہے۔ دن بھر میں رمضان میں تو 6 گھنٹے کرتے ہیں، جی جی، اور عام دن میں 9 گھنٹے۔ رمضان میں 3 گھنٹے کا ریلیف آپ کو ملتا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، تو یہ بتائیں رمضان کیسے گزارتے ہیں آپ؟ رمضان صبح سحری کو اٹھتے ہیں، روزہ سحری کرتے ہیں، روزہ رکھ کے آتے ہیں، 7 بجے ڈیوٹی ہوتی ہے، جی جی۔ 7 سے 1، پھر 1 کے بعد نماز کا وقفہ ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں پورے دن کی یہ جان توڑ محنت کرنے کے بعد جب وقت افطار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، افطار کا وقت ہو، انتظار ہوتا ہے، سامنے اناج ہوتا ہے، فروٹس بھی ہوتے ہیں، شربت بھی ہوتا ہے، اور بس لیکن رکے ہوئے اس لیے ہوتے ہیں کہ میرے رب نے فرمایا ہے کہ اذان مغرب پر ہم افطار کریں، تو کیا کیفیت ہوتی ہے اور کیا دل کی تمنائیں کیا ہوتی ہیں کہ اب ہم رکے ہوئے ہیں، رب کی رضا کی خاطر رکے، رب کے حکم پر رکے ہوئے ہیں، اب جیسے رب کا حکم ہوگا ہم کھائیں گے، تو رب سے مانگتے وقت کیا اس وقت ذہن بنتا ہے کہ کیا مانگا جائے؟ یہی آخرت مانگتے ہیں، ہماری آخرت اچھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، یہی چیز دل میں ہوتی ہے، یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں حج کی اسعادت دے دے، مدینے جائیں، وہاں حاضر ہو کے سرکار کو سلام کریں، یہ حسرت ہوتی ہے، یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو لے کے جائے اس پاک جگہ پہ۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں یہ کتنا پیارا انہوں نے مانگنے کا طریقہ بتایا، اور مانگنا بھی کیا چاہیے، دنیا تو مل ہی جاتی ہے، آخرت مانگی جائے، کامیابی بھی اسی میں ہے کہ روزہ رکھا ہے، محنت کی ہے، الدعاء المخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، جب ہم پورے دن میں عبادت کے اندر اپنا وقت گزار لیتے ہیں، اب جب مناجات افطار کا وقت ہو جائے، رمضان میں افطار کے وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپنے رب سے مزدوری مانگنے کا وقت ہے، تو مزدوری کے اندر دنیاوی چیزیں کیا مانگی جائے، آخرت مانگی جائے، ایمان کی سلامتی مانگی جائے، حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے پاک پر حاضری کا شرف مانگا جائے، حج کی سعادت مانگی جائے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ تو ایسے شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر رمضان میں روزہ رکھ رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، محنت والے کام بھی کر رہا ہے، محنت کش کا رمضان گویا آیا ہوا ہے، اور وہ عبادت کرنے کے بعد جب اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہے گا اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، تو یقیناً محروم نہیں لوٹایا جائے گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دنیا تو مانگے ہی مانگے، دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگے، آخرت کو زیادہ ترجیح دیں کہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، آخرت رہنے والی چیز ہے۔ مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے، مسرت سے سینہ مدینہ بنا ہے، مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے۔
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? वसीम नाम है। अच्छा, यहाँ पर आप क्या काम करते हैं? मैं फैब्रिकेशन का काम करता हूँ आप भी फैब्रिकेशन का काम करते हैं, कितने अरसे से कर रहे हैं? तकरीबन 24 साल से। 24 साल हो गए इनको ये काम करते हुए। रमज़ान कैसे गुजारते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रख के काम करके अल्लाह और अल्लाह का रसूल हमसे राज़ी है। माशाल्लाह। देखिए इनकी भी यही तमन्ना है कि अल्लाह और उसका रसूल राज़ी हो जाए। ये बताएं कि रोज़े और आम दिन के क्या फ़र्क महसूस करते हैं? रोज़े में ये है कि बस सब्र होता है उसमें, और आम दिन में होता है सब्र नहीं होता। आम दिन में तो ये होता है भाई 1 बजे लंच हो गया, चलेगा लंच करने के लिए। ठीक है। और ये कि रमज़ान में सब्र होता है कि भाई रोज़ा है, तरावी पढ़नी है, नमाज़ पढ़नी है, तमाम मामलात होते हैं। तो रमज़ान की टाइमिंग में और दिन रमज़ान के अलावा टाइमिंग में कितना फ़र्क है आपका? रमज़ान में जो है ना टाइमिंग होती है 7 बजे की, और 7 बजे से 1 बजे तक, और आम दिन में 9 से 5 बजे तक होते हैं। 9 से 5 यानी कितने घंटे हो गए? तकरीबन 8 घंटे हो गए। आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो रोज़ा नहीं रखते हैं, उनके क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो ये पैगाम देना चाहिए कि भाई मतलब वो रोज़ा रखें, अल्लाह और अल्लाह का रसूल उनसे राज़ी हो जाए और मामलात हो जाएं सारे उनके पूरे, ताकि अल्लाह खुश हो जाए। इफ्तार के वक्त जब दस्तरखान पे बैठते हैं तो क्या कैफियत होती है? क्योंकि उस वक्त जो है ना बस हालत ऐसी होती है कि बस, क्योंकि सारा दिन सुबह से लेकर शाम 1 बजे तक काम करते हैं, उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ते हैं, आराम करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद ये कि रोज़े की हालत में होते हैं। जब घर जाते हैं बस ये कि असर का वक्त हो जाता है, असर की नमाज़ पढ़ के फिर घर पे आते हैं और मामलात होते हैं घर में, उनको पूरा करना होता है। फिर रोज़े का वक्त हो जाता है, फिर रोज़े की हालत में बैठे होते हैं दस्तरखान पे कि भैया अब रोज़ा खुले तो मतलब ये कि इफ्तार करें, फिर नमाज मगरिब अदा करें। मज़ा ख़ूब रमज़ान में आ रहा है, मसरत से सीना मदीना बना है। मज़ा ख़ूब रमज़ान में आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हुज़ूर? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद। अच्छा, आप ये बताएं कितने अरसे से काम कर रहे हैं यहाँ मैं तकरीबन 1 साल होने वाला है। 1 साल होने वाला है। इससे पहले क्या काम करते थे? पहले मैं दूसरी कंपनी में था। मतलब यही काम कर रहे थे? हाँ। उन लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो रोज़ा नहीं रखते हैं, पेट दर्द हो जाए, सर दर्द हो जाए, नहीं, तो रोज़ा नहीं रखते मैं हैं तो और उनको ये दिन पैगाम सबके दूंगा सामने कि खाते वो पीते रहते हैं। नहीं, मैं तो उनको ये पैगाम दूंगा कि भाई वो साल में 1 महीना आता है ऐसा जिसमें ये रोज़ा रखना चाहिए, किसी तरीके से भी रोज़ा रखें, रोज़ा ना छोड़ें, क्योंकि ये फ़र्ज़ है आपके ऊपर। नहीं, जो रोज़ा रखते समझते हैं रोज़ा रखेंगे तो बीमार हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जी, ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हकीकत भी यही है। फरमाया गया कि रोज़ा रखो तुम्हें सेहत दी जाएगी। हाँ, अब अगर रोज़ा रखकर हम बीमार हो जाते हैं तो ये हमारी अपनी गलतियाँ हैं। हम इफ्तार में और सहरी में डट के खाते हैं, जिसकी वजह से मैदे में प्रॉब्लम हो जाती है, और हमारा डट के खाने की वजह से जो है हम बीमार हो जाते हैं। अगर हम सही मानों में पेट का कुफले मदीना लगाते हुए रोज़ा रखें और खाएँ, और इफ्तार में और सहरी में भी पेट का कुफले मदीना लगाते हुए तरीक़ेकार से खाएँ, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल हम बीमार भी नहीं होंगे और रोज़ा हमें सेहत अता फरमाएगा। आइए चलते मज़ीद मेहनत कश और आशिकाना रसूल की तरफ। मज़ा ख़ूब रमज़ान में आ रहा है, मसरत से सीना मदीना बना है। मज़ा ख़ूब रमज़ान में आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का क्या नाम है आपका? मोहम्मद कुमुद्दीन। चलें, आज उम्र बता दें अपनी कितनी है? मेरी उम्र 55 साल। 55 साल इनकी उम्र है। मदनी चैनल के नाज़रीन, क्या काम करते हैं यहाँ पर आप? ये फैब्रिकेशन अच्छा, आप भी फैब्रिक का काम करते हैं, माशाल्लाह। तो ये रमज़ान का मुबारक महीना कैसे गुजारते हैं आप? सुबह उठते हैं, रोज़ा रखते हैं, फिर रोज़ा रखने के बाद यहाँ आने की तैयारी करते हैं, काम पे आने की तैयारी करते हैं। यहाँ से जाने के बाद घर जाके नहा धो के कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं। फिर इफ्तार का वक्त होता है, इफ्तार करते हैं, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर तरावी पढ़ते हैं। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला जो है अपनी ऐसी अच्छी नेमतें खिलाता है, क्या कह सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए मदनी चैनल के नाज़रीन, ये वो आशिक़ रसूल जो तासुरात देते हुए इनकी आंखों में आंसू आ गए। रोज़ा रखा हुआ माशाल्लाह, ये इनके आंखों में आंसू आना इस बात की अलामत है कि हम अपने रब की जितनी इबादत करें, ये हम उसकी इबादत का हक़ अदा नहीं कर सकते। इनकी आंखों में आंसू आना इस मतलब ये है कि ये रोज़ा रखे ने, मगर फिर भी इस बात पर शुक्राने के आंसू आंखों में आ रहे हैं। हम तो इस काबिल नहीं हैं, मगर हमारा रब हमसे अपनी इबादत करवा लेता है। क्या कहते हैं आप? अल्लाह ताला तो वो जो चाहे सो कर सकता है। उसने हमें इतनी ज़िंदगी दी, उसने यानी कि हमें इतनी इजाज़त दी, हाथ पाँव सीधे हैं, सब कुछ है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम रोज़ा रखें और इबादत करें। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है।
बिल्कुल, देखें कितनी प्यारी बात उन्होंने फरमाई कि अल्लाह ताला ने हाथ पैर सलामत रखे हैं, हमारी सेहत दी है तो रोज़े रख लें। तो सेहत को गनीमत जाने बीमारी से पहले, वरना बीमारी आ जाएगी, अल्लाह ना करे बीमार हो जाएंगे तो फिर तरसेंगे कि काश सेहतमंद होते तो अल्लाह की इबादत करते। तो इबादत के यही दिन हैं, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो करना है अभी कर लो, अभी नूरी जमा तुम हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मज़ा ख़ूब रमज़ान में आ रहा है, मसरत से सीना मदीना बना है। मज़ा ख़ूब रमज़ान में आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? रेहान नाम है। ये कितने अरसे से काम कर रहे हैं? तकरीबन 20 साल से। 20 साल से। दिन भर में कितनी शीटें उतार लेते हैं? दिन भर में नहीं, ये 2 महीने में 3 महीने में 3-4 ट्रक आता है। 3-4 ट्रक आता है। फिर उसके बाद फिर क्या काम करते हैं? उसके बाद माल को काटना, पेंडिंग करना और फिर बना के देना। काम माल क्या बनाते हैं आप? ये चौकटें वगैरह जस्ट ये जो ये पीछे आपके रखी हुई है, ये चौकटें बनाते हैं। रमज़ान कैसे गुजारते हैं आप? माशाल्लाह ऐसे ही गुजारते हैं, कभी काम कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, लेकिन इफ्तियार के बाद काम करते हैं। दिन में नहीं करते हैं? दिन में कम कर देते हैं। क्यों नहीं करते दिन में? अपने हिसाब से करते हैं, जितना हो सकता है इतना कर लेते हैं, बाकी जो है थोड़ा सा अपने हिसाब से कर लेते हैं कि मतलब रमज़ान में रोज़ा रखा हुआ था इसलिए तकलीफ हो जाती थोड़ी, इसलिए रमज़ान के बाद इफ्तार के बाद करते हैं इसको। तो रुक जाते हैं, फिर इफ्तियार के बाद करते हैं। मतलब ये एहतमाम करते हैं आप? जी जी। दिन भर में रमज़ान के अलावा टाइमिंग क्या होती है आपको? रमज़ान में क्या टाइमिंग होती है? रमज़ान में तो अपनी 7 बजे तक की टाइमिंग है, सुबह 9 से 7। और रमज़ान के अलावा? रमज़ान के अलावा 9 से अपना तकरीबन 9 बजे तक। मज़ा ख़ूब रमज़ान में आ रहा है, मसरत से सीना मदीना बना है। मज़ा ख़ूब रमज़ान में आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका क्या काम है यहाँ पर, क्या काम करते हैं? कारीगर हूँ, चौखटे बनाता हूँ। कितना महीने में, 2 महीने में कितना आ जाता है 2 ट्रक? महीने में 3 महीने में 2-4 ट्रक आते हैं। वो खाली भी करना आपकी जिम्मेदारी है? अच्छा, रमज़ान के अलावा और रमज़ान में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? रमज़ान में इतना मेहनत वाला हम खुद काम नहीं करते, बाकी रमज़ान के अलावा खुद हम दिलो जान से मेहनत करते तो रमज़ान के अलावा रमज़ान में इतनी मेहनत वाला काम क्यों नहीं करते हैं? हैं। रोज़ा होता है, रोज़े का एहतराम करते हैं। रोज़ा लग जाएगा तो क्या फ़ायदा, ना परेशानी होगी। अच्छा, मतलब ये कि पहले रोज़े में इतना काम नहीं करते कि हम रोज़े रख सकें, इसलिए इससे कम काम करते हैं। नहीं छोड़ सकते जी। मदनी चैनल के नाज़रीन, कितना प्यारी बात की कि काम का लोड कम कर देते हैं ताकि रोज़ों पर इफेक्ट ना हो इसका। और रमज़ान फिर इफ्तार के बाद काम करते हैं? इफ्तार के बाद काम करते हैं, काम रह जाता है तो इफ्तार के बाद आते हैं, उसको निपटाते हैं काम। इफ्तार के बाद भी काम करते हैं ये, और रमज़ान में रोज़ा रख के काम की थोड़ी सी जो पोजीशन को हल्की कर लेते हैं ताकि रोज़े पर इफेक्ट ना हो, रोज़े ना छूट जाएं, इस चीज़ का ये एहतमाम करते हैं। अच्छा, ये सारा सामान जो आता है ट्रक के अंदर आता है, ठीक है? और मदनी चैनल के नाज़रीन, जाहिर सी बात है कि ट्रक लेके जो आते हैं वो भी मेहनत कश हैं कि धूप में लेके आते हैं इतना वजन वाला लोड। तो हमारे पास वक्त ट्रक ड्राइवर भी मौजूद हैं, आओ उनसे भी कुछ तासुरात लेते हैं कि वो क्या कहते हैं कि वो रमज़ान उनका कैसे गुजरता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मज़ा ख़ूब रमज़ान में आ रहा है, मसरत से सीना मदीना बना है। मज़ा ख़ूब रमज़ान में आ रहा है। क्या नाम है आपका? अब्दुल कादर। अब्दुल कादिर। क्या काम करते हैं यहाँ पर आप? ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइवरिंग करते हैं। तो सिर्फ ये शीटें ही ड्राइवरिंग करते हैं या जो सरिया लकड़ जो भी मिल जाए लेकर जाता हूँ, कभी सिंध जाता हूँ, कभी पंजाब जाता हूँ, कभी लोकल चलता हूँ, कहीं भी चलता अच्छा, माशाल्लाह। रमज़ान कैसे गुजारते हैं ये हूँ। बताएं? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत दिल को खुशी होती है रमज़ान। गुजारने का अंदाज क्या है आपका? मतलब ये है कि रमज़ान में इस तरह दिल को खुशी मिलती है कि रमज़ान जब अफ्तारी करते हैं, जब सहरी करते हैं, बहुत खुशी मिलती है, और आम दिनों में ये चीज़ नहीं मिलती है जो हमें ये मिलती तो रमज़ान के अलावा और रमज़ान में दोनों में क्या फ़र्क है आपको? है। बहुत फ़र्क है इस चीज़। क्या फ़र्क है, फ़र्क बताएं। फ़र्क ये है कि रमज़ान होता है कि मुँह इंसान का और अल्लाह का कलाम, ये चीज़ नमाज वगैरह हर चीज़ मिलती है, और वैसे आम दिन में ही मिलती है, मगर ये चीज़ नहीं मिलती रमज़ान में जो मिलनी चाहिए। अच्छा, मतलब रमज़ान में आप क्या एहतमाम करते हैं, अलग से क्या एहतमाम करते हैं आप? अलग से यही है, अपना रोज़ा रखते हैं, तमाम करते हैं, इससे अपना जो अपना तरीक़ेकार है हमें
उससे रोज़े के ज़्यादा एहतराम करने की चाहत है, वही करते हैं। देखें रमज़ान के अंदर ये भी मेहनत करते हैं, इबादतें भी करते हैं। इबादत का एक जहन बना हुआ हो अगर घर की तरफ से भी, और हम अपना जहन बना लें कि हमें इबादत करनी है, तो यकीन माने कि हम छोटा मोटा काम अगर कर लें रमज़ान के अंदर, और फिर उसके बाद अगर इफ्तार के बाद करना चाहें तो इफ्तार के बाद कर लें, मगर रमज़ान के मुबारक महीने के अंदर रमज़ान का एहतमाम करते हुए, रमज़ान का एहतराम करते हुए रमज़ान के रोज़े रखें, रोज़ों को ना छोड़ें, इबादत करें, इबादत को ना छोड़ें। तो हमें भी चाहिए कि हम रमज़ान के अंदर खूब दुरूद पाक की कसरत करें, इबादत करें, सुबहान अल्लाह पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, अल्लाहु अकबर पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ें, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें, कुरान मजीद की तिलावत करें कि ये माह नुज़ूल कुरान भी है। जी हाँ, कुरान मजीद रमज़ान के मुबारक महीने में ही मुकम्मल हुआ, तो ये माह नुज़ूल कुरान भी है। कुरान की तिलावत भी करें कि कुरान का एक एक लफ्ज़ पढ़ने की 10-10 नेकियां, और रमज़ान में इस नेकियों को बढ़ा दिया जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मज़ा ख़ूब रमज़ान में आ रहा है, मसरत से सीना मदीना बना है। मज़ा ख़ूब रमज़ान में आ रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हुजूर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? महबूब आरिफ नूरानी। अच्छा माशाल्लाह, क्या काम है आपका? आयरन स्टील का शॉप का पॉलिश शॉप। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कितने अरसे से काम कर रहे हैं अभी? तकरीबन 8 साल हो गए मुझे। 8 साल हो गए। रमज़ान के अलावा और रमज़ान में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? रमज़ान है और ज़ाहिर है आम दिन है, इसमें भी अल्लाह का शुक्र है सही निकल जाते हैं रोज़े। तो आप रमज़ान कैसे गुजारते हैं? आपके मामूलात क्या होते हैं रमज़ान में? रमज़ान में वही है जो आम मामूलात है। रमज़ान है, रोज़े तो रखने ही है, फ़र्ज़ है। मदनी चैनल के ज़रिए उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो सेहतमंद हैं और मतलब ज़रा सा सर में दर्द हो जाए या पेट में दर्द हो जाए तो रोज़े नहीं रखते, उनके बारे में आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? रोज़े रखना हमारे हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। सेहत आपकी कलील है तो भी आप इतनी है कि ना हो तो आप नहीं रख सकते, इसके भी ये है कुछ, बाकी रोज़े रखना फ़र्ज़ है। हर हम भी मेहनत कर रहे हैं, जिस भाई जो रोज़े नहीं रखते उनको भी चाहिए कि वो रोज़े रखें। हम अपने रब की रहमत की तरफ जाएंगे, रब की रहमत के दरवाजे को बार बार दस्तक देते रहेंगे, कभी नमाज़ों की सूरत में, कभी रमज़ान के रोज़ों की सूरत में, कभी छोटी छोटी नेकियों की सूरत में। इंशाल्लाह एक न एक दिन रहमत का दरवाज़ा खुल ही जाएगा। और रहमत का दरवाज़ा कैसे खुलेगा कि इंशाल्लाह जैसे दरवाज़ा खुलेगा जन्नत हमारी मुंतज़िर होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मज़ा ख़ूब रमज़ान में आ रहा है, मसरत से सीना मदीना बना है। मज़ा ख़ूब रमज़ान में आ रहा है। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का करम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। अच्छा, आपका काम किस चीज़ का है? हमारा वायर का काम है। वायर का काम है। लोहे के वायर होते हैं, स्टील वायर होते हैं, कौन से होते हैं? जी लोहे के, इससे पिंजरे वगैरह बनाते हैं। आप ये बताएं रमज़ान का आप क्या एहतमाम करते हैं? रमज़ान का तमाम ये है कि 2 बजे छुट्टी, जी, सुबह 8 बजे तो 2 बजे तक, जी, इसके बाद इबादत में लग जाते हैं। माशाल्लाह। रोज़े भी पूरे जाना, तरावियाँ। अच्छा माशाल्लाह। क्या आपके पास दुकान पर और कौन कौन काम करता है आपके साथ? मेरा एक लड़का है और मैं हूँ, एक कारीगर। अच्छा, वो भी माशाल्लाह इसी तरह उनकी रूटीन सब रोज़ेदार हैं माशाल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन देखें, ये खुद भी काम करते हैं, इनके बेटे भी काम करते हैं, और रमज़ान के अंदर ये 8 बजे से 2 बजे तक काम करते हैं। क्यों करते हैं? रमज़ान का एहतमाम करते हैं कि रमज़ान के अंदर हम रोज़ेदारों को रिलीफ दें। हमारा रोज़ा है, हम रोज़ा रख कर काम में थोड़ी कमी कर लें, इबादत में ज़्यादती कर लें, तो काम कम करेंगे तो इबादत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका एहतमाम क्या करते हैं, सुबह 8 बजे आ जाते हैं और 2 बजे अपनी दुकान को बंद करके अपने घर की तरफ चले जाते हैं, नमाज़ों का एहतमाम करते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, रोज़ा भी कोई नहीं छोड़ते। माशाल्लाह, कितनी अजीम नेमत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाए कि रमज़ान में क्या है तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करती कि काश पूरा साल रमज़ान होता। रमज़ान की कदर कीजिए इससे पहले कि रमज़ान चला जाए। आइए चलते हैं दूसरे आशिक़ान रसूल की तरफ, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं रमज़ान मुबारक के हवाले से। मज़ा ख़ूब रमज़ान में आ रहा है, मसरत से सीना मदीना बना है। मज़ा ख़ूब रमज़ान में आ रहा है। कैसे आप? ठीक हैं? अल्लाह की बड़ी मेहरबानी। क्या नाम है आपका? जावेद। उम्र कितनी है आपकी? 45। माशाल्लाह। आप क्या काम करते हैं? बस स्प्रिंग का काम है मेरा। स्प्रिंग का काम है आप। ये बताएं कि रमज़ान के अलावा और रमज़ान में क्या फ़र्क महसूस करते हो? रमज़ान कैसे गुजारते हैं आप? रमज़ान माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजरते हैं,
और टाइमिंग जो है हमारी जो है वो ये है 8 बजे से 2 बजे तक की। अच्छा। हाँ, और माशाल्लाह तरावी रोज़ा सब माशाल्लाह बहुत अच्छा जाता है। मदनी चैनल के जरिए उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो रोज़ा नहीं रखते हैं, सर दर्द की वजह से, पेट दर्द की वजह से, या कोई भी उज़्र शरई ना होने के बावजूद भी रोज़ा नहीं रखते, उनके क्या कहेंगे आप? रोज़ा रखना चाहिए, और जब रोज़ा रखेंगे तो माशाल्लाह ना दुख, ना तकलीफ, ना हारी, ना बीमारी, कुछ भी नहीं होगी। जी जी, यकीनन रोज़ा रखिए, सेहत दी जाएगी। ये फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी है कि रोज़ा रखो, सेहत दी जाएगी। तो मतलब हम भी रोज़ा रखें और इबादत भी करें, अपने रब को राज़ी करने के काम करें, इस्तग़फ़ार पढ़ें और खूब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों से गिड़ के माफ़िया मांगे। याद रखिए कि रमज़ान का मुबारक महीना है। इस मुबारक महीने में सहर व इफ्तार के वक्त लाखों लाख लोगों को जहन्नुम से आज़ाद किया जाता है। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं, जब गुजर जाएंगे माह 11, तेरी आमद का फिर शोर होगा, मगर क्या मेरी ज़िंदगी का भरोसा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। इससे पहले कि रमज़ान का मुबारक महीना हमसे जुदा हो जाए, मांग लीजिए अपने रब से। रब की रहमत का दरवाज़ा बहुत बड़ा है, मांगिए अपने रब से, अपनी मग़फ़िरत मांगिए, कब्र की वहशत दूर होने की दुआ मांगिए, कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाए, इसकी दुआ कीजिए, ईमान पर सलामती के साथ दुनिया से रुखसत हो, इसकी दुआ कीजिए, अपने रब से मांग लीजिए। ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मज़ा ख़ूब रमज़ान में आ रहा है, मसरत से सीना मदीना बना है। मज़ा ख़ूब रमज़ान में आ रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गुलाम कादिर अत्तारी। अच्छा, ये जो आप काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में से लेथ मशीन का काम कहते हैं? जी, ये लेथ मशीन का काम है, लेकिन ये जो मशीन है ये इसको लेज़र ट्रेड कहते हैं। ये लेथ मशीन की तरह है, चूड़ियाँ बनाती है मशीन। अच्छा, सिर्फ चूड़ियाँ बनाती हैं? अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये भी तो माशाल्लाह मेहनत तलब काम है, तो ये आप किस तरह करते हैं? रमज़ान में किस तरह आपकी मामूलात होते हैं? क्या होता है रमज़ान में मामूलात? वैसे तो हम लोग सुबह रमज़ान शरीफ के अंदर सुबह 10 बजे आते हैं। जी जी। शाम को 4 बजे छुट्टी करते हैं। ठीक है। रमज़ान के अलावा क्या टाइमिंग होती है? रमज़ान के अलावा हमारी सुबह 9:30 से शाम 6:30 बजे तक की टाइम, यानी कि रमज़ान में आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता है। अच्छा, आपके अलावा और कितने इस्लामी पर काम करते हैं? 5 काम करते हैं। इन सब की टाइमिंग यही होती है रमज़ान के अंदर? जी। मदनी चैनल के ज़रिए उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो रोज़े नहीं रखते हैं? रोज़े को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, और अगर किसी शरई उज़्र से कोई रोज़ा छोड़ भी देता है तो उसकी क़ज़ा करनी चाहिए। और अल्लाह ताला का ये हम पर फ़ज़ल है, एहसान है उस मालिक का कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के तुफ़ैल हमें रमज़ान का महीना अता फ़रमाया, और अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत में हमें पैदा किया। तो हमें चाहिए कि हम रमज़ान शरीफ में रोज़ा रखें और अल्लाह के रसूल को राज़ी करें। मज़ा ख़ूब रमज़ान में आ रहा है, मसरत से सीना मदीना बना है। मज़ा ख़ूब रमज़ान में आ रहा है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने आपको दिखाया है मुख्तलिफ़ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले वो आशिकान रसूल के जो मेहनत कश भी हैं, रमज़ान के मुबारक महीने में रोज़े भी रखते हैं, अपने रब को राज़ी करने वाले काम भी करते हैं। और इफ्तार के वक्त जब ये लोग दस्तरखान पर बैठते होंगे और अपने रब की बारगाह में हाथ उठाते होंगे, तो क्या ही अंदाज़ होते होंगे कि पूरा दिन रोज़ा रखा, मेहनत भी की, रिज़्क़ हलाल की तलाश भी की, और अब मज़दूरी मिलने का वक्त है, अपने रब की बारगाह में हाजिर हो गए हैं, हाथ उठाकर दुआएं करते हैं, तो मेरा रब इन्हें कैसे खाली लौटाता होगा। मदनी चैनल देखते रहिए, इंशाअल्लाह अगले सिलसिले में फिर हाजिर होंगे नए मेहनत कशों को लेकर, क्योंकि ये है मेहनत कशों का रमज़ान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ऐ मेरे किबरिया, देता हूँ तुझको वास्ता तेरे हबीब का।